Hello student, welcome back to my channel. So today we will discuss here about the next topic of chapter motion in a plane. The topic name is in front of you, uniform circular motion. As you are very familiar with the word circular motion means that when the object cover circular path, such type of motion is called circular motion. But here we can, if we want to define the circular motion, we can say that in case of circular motion, so this one is the diagram of circular motion. So here if we think about the circular motion, as we know that here I have drawn a circle of a fixed radius r and an object is traveling or moving in a circular path with their velocity v, and here the velocity term is made by, as you know that, two terms, speed plus direction. Okay, so here when we talk about the uniform circular motion, it means that the object is moving with the constant speed, but due to change in direction here at point P, suppose their direction of v is tangent at point P. So here if we think about this point, and here if we see the direction of v, that time we will see that the tangent at any point Q will represent the direction of v here, and here also like this, and here also like this. So you can see that at every point, easily you can see that every point of the circular track will represent different direction of the given velocity. So we can say that the circular motion is that in which the object moves with respect to a fixed point O, so that the magnitude of velocity at every point remain constant, which is our speed, but their direction is changes. So hence we can say that the circular motion is that motion in which the object is moving such a way that their velocity changes but their speed remain constant, and velocity changes only due to their direction, because it is a combination of two things, magnitude and direction. And after that, if we think about here different terms like our angular displacement. Okay, so here just imagine if the object initially moves from P to A, then P to B, then if the object move from P to A, it covers any angular displacement, or it covers at an angular distance theta1, and here it covers, suppose, the angular distance theta2. That time the displacement of angle between these 2 points A and B will be theta2 minus theta1, and it is noted by delta theta. So this is called our angular displacement, and this displacement occurs in a given time. Suppose this time is delta t. Point is clear? So this time is delta t. So at this time the angle, or you can say the angle made by the two positions, which is at A and B, and these positions have different position vector, okay, in two-dimensional plane, but here we are seeing that the radius remains same because of the circular motion initially. So in these 2 points you will see that the object cover different position vector. Because of this, the displacement of the object for distance AB, or you can say for linear displacement AB, if we think about the time is very small, or you can say if the time interval is very small or is approached to 0, so that time the given angular displacement goes to d theta. So I will explain the all terms in front of you, and after that angular velocity, and after that angular acceleration. So one by one I will discuss. So let's start the definition of uniform circular motion first. Uniform circular motion, as I explained here, if an object moves with respect
to a fixed point. This definition may be also explained as with respect to a fixed point with different velocity. Due to direction it is different velocity but constant speed. Constant speed means that here suppose the speed is 20 km per hour. It is also 20 km per hour. It is also 20 km per hour. This is the magnitude of velocity, 20 km per hour. So this remain constant. So this is our constant speed, but the direction is different. It is in upward direction. It is toward the, you can say left side, or you can say toward north and west direction, and this one is in downward direction, west and south in between. So direction is changes at different points, so that's why the velocity is changeable. So definition is at fixed point, so that the velocity constant speed and covers a circular path. Fixed point, when we talk about the fixed point, you can add here center of circle if you want. Fixed circular path of given radius. So this type of motion is called uniform circular motion. Point is clear, student? Now here from the given diagram, if we think about different terms, so the first term will be here. If we think about this, the first term is our angular displacement. Angular displacement, if we think about, which is delta theta, as I have been explained in front of you what is the meaning of angular displacement. So if we think about angular displacement here, you can see that if the object covers two different positions at different time in circular motion, like this, A and B. Suppose the object cover P to A at any time t1 and P to B at any time, suppose here I am erasing this part, suppose this time is our t2 of different time, then the difference between their angular position for the given time interval is called, or angular position or angular distance is called angular displacement. You may also define like this. So see, if we think about, first object moves from O to A, then object moves from O to B, sorry, P to B here, P to A, P to B, and for P to A object cover theta angle theta1 and it covers or it makes theta2 angle. That time the angular displacement delta theta is the difference between these two, theta2 minus theta1, and for the given time interval, delta t, which is equals to t2 minus t1. Point is clear, student? Now if I add one condition, if our time interval is approached to 0, that time delta theta is converted, will be converted into d theta. As we know that time is very small, so you can say that delta theta
can be written as d theta, or sorry, delta t can be written as dt, as well as the delta theta written as d theta. So these are the points for an instantaneous angular displacement in instantaneous time. Point is clear? So after that we talk here about the next word, which is our angular velocity. So for that, pause the video and note down. After that, dear student, we talk here about the next one, angular velocity. In previous classes you read about in class 9th linear velocity. तो ये आपने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी आपने दो चीजें पढ़ी होंगी बच्चों. एंगुलर वेलोसिटी कब काम करती है? जब ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है, यानी जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कवर करता है तो उस केस में जो आपके पास वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है. और ये आपके पास क्या रहेगी? कांस्टेंट रहती है. दूसरा, जब आपके पास ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा है तो उसके पास जो वेलोसिटी रहेगी, जब सर्कुलर मूव करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो आपके पास क्या रहेगी? हम यहाँ पे ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देंगे, ओमेगा बोलते हैं इसे, ठीक है. और जब उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, यानी आपका स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करेगा, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होती है वो आपके पास लीनियर वेलोसिटी होती है. लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वजह से होती है, dx बाई dt, और ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, d थीटा, उसकी वजह से होती है. पॉइंट क्लियर? तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी. और जब ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर होता है तो लिसन केयरफुली, ये जो उसकी आपके पास, आपको v आपका रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है आपके पास? तीनों कंडीशन में, चारों कंडीशंस में उसकी लीनियर वेलोसिटी. और लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? चेंजेबल रहेगी बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है. और अब इसकी स्पीड क्या है? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा. और उसके लिए आपके पास क्या होगा? यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है, एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? आपका फिक्स रहेगा, यानी रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहता है. जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी. तो पहले इसकी डेफिनेशन, तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन अब सिंपल हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने सब आपको पहले एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. एज वी नो दैट आर फॉर गिवन टाइम इंटरवल, अगर हम यहाँ पे गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी डिस्कस करते हैं, इस गिवन टाइम इंटरवल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? आप ये मान लीजिए आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास क्या है? डेल्टा थीटा है. तो देयरफॉर ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. अब आप न्यूमेरिकल पोर्शन में अगर कहीं आपको डिफरेंशिएशन इक्वेशन दी हुई है, उस केस में अगर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, थीटा की एक डिफरेंशिएशन इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू टी, लाइक दिस. थीटा आपके पास जो पोजीशन, एंगुलर पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 दे रखा है, और उसके रिस्पेक्ट में आपसे दो तीन चीज़ें पूछी होंगी, लाइक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन. तो उस कंडीशन के लिए आपके पास जो डिफरेंशिएशन मोड पे इक्वेशन लानी होगी, तो यहाँ पे अगर हम टाइम इंटरवल को अप्रोच टू जीरो कर लें, हम कहेंगे टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो उस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी है आपके पास वो क्या होगा? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर, या आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये आपका कन्वर्ट हो जाए कि डी थीटा बाय डी टी बनेगा, जिसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, या आप इसको इस फॉर्मेट में लिख लीजिए. न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा, न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए. अब बात आती है इसकी यूनिट की. जैसे कि आपको पता है एंगल की ऐसा यूनिट पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करी, क्योंकि आपको आई थिंक पता होगा कि एंगल की ऐसा यूनिट है, डिग्री नहीं होती है, लिसन केयरफुली, ठीक है. डिग्री इसकी आपके पास ऐसा यूनिट नहीं है, मेजरेबल यूनिट है, जिसको आपके पास वेरी फेमस यूनिट है बेसिकली.
जब हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो एंगल की एसआई यूनिट जो होगी, एसआई यूनिट ऑफ एंगल जो होगा वो स्टूडेंट रेडियन होगा, आपको पता होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, रेडियन, और इसकी क्या हो गई, टाइम की सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड वेलोसिटी है, जैसे मीटर पर सेकंड आता है वैसे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मीटर की जगह रेडियन आ जाएगा। तो रेडियन पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ आर एंगुलर वेलोसिटी। अब इस एंगुलर वेलोसिटी के बाद जो नया टॉपिक यहाँ पे आएगा वो रहेगा आपके पास एंगुलर एक्सीलरेशन, उसकी भी स्टडी कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इतना हो गया, आप इसे पॉज करिए, नोट करिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। तो उसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज देंगे हम यहाँ पे, जैसे कि देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन भी आपने दो टाइप के पढ़े होंगे, ठीक है। एक आपके पास ये अल्फा है, आपने स्टडी किया होगा प्रीवियस क्लासेस में लीनियर एक्सीलरेशन, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते थे। फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें आपने पढ़ी होंगी जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते थे। अब यहाँ पे है एंगुलर एक्सीलरेशन, ये कब वर्क करता है, जब ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे सर्कुलर मोशन देता है आपको, ठीक है। तो उस केस में अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड आर एंगुलर एक्सीलरेशन फॉर अ गिवन टाइम डेल्टा टी। द एंगुलर वेलोसिटी, सपोज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने लैंग्वेज, ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, अगर डेल्टा टी टाइम है तो उसके लिए डेल्टा ओमेगा अगर हम डिस्कस कर दें तो देयरफॉर एंगुलर एक्सीलरेशन जो रहेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन आपके पास अल्फा जो होगा वो होगा डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसके लिए कंडीशन आप ये लिख दीजिएगा, डेल्टा टी टेंस टू 0, तो उसके इसके लिए सीधा आपके पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख दिया। एंड इसकी एसआई यूनिट वो क्या होगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। रेडियन पर सेकंड इसकी, और सेकंड से इनटू हुआ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन और आपका यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये तीन टॉपिक यहाँ पे सर्कुलर मोशन के डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। ये आपके पास जो न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है मैंने यहाँ पे बना के, ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे, आपके पास ये न्यूमेरिकल समझ लीजिएगा, इसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम फाइंड करेंगे यहाँ पर हम फाइंड करेंगे फाइंड एगा एंड अल्फा कर लेते हैं फॉर द टाइम इंटरवल, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के लिए इसका ओमेगा और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट क्लियर, दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर है स्टूडेंट। तो देखिएगा जरा, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं कितना फाइंड आउट होता है। सी, सिंस वी हैव गिवन थीटा इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, अगर इसको ओमेगा फाइंड आउट करना है तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे डी थीटा बाई डी टी। आपको सारे फॉर्मूले डिस्कस करे थे, ओमेगा का फॉर्मूला होता है डी थीटा बाई डी टी, तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया डी बाई डी टी। देखिए डी बाई डी टी, थीटा की जगह पूरी वैल्यू रख लीजिएगा, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। तो अब इसे सॉल्व करिएगा, ये आपके पास बनेगा 2 2 जा 4t प्लस 3, t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हमारे पास डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा ओमेगा आ गया आपका, और यू कैन से ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू दिस। अब किसी स्पेशल टाइम पे हमसे पूछा हुआ था t इज इक्वल्स टू 5 फॉर t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, तो इस 5 सेकेंड के लिए हमारे पास t की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओमेगा इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 3, 4 5 जा 20, 23 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके बाद अगर हम एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए इसी को आगे कंटिन्यू कर देते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए आपको ये वाला पोर्शन क्लियर हो रहा होगा। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय
dt, दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इस इक्वेशन का। तो देखिए ये आपके पास 4t प्लस 3 थी, आपका d अपॉन डी टी 4t प्लस 3 है। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन 1, तो आंसर आ गया 4, और 3 का हो गया 0, तो आंसर है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें आप t की वैल्यू रख भी लेंगे अगर कुछ भी, तो तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। वाई, बिकॉज जो अल्फा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ t है, कांस्टेंट वैल्यू है जो इंडिपेंडेंट ऑफ t है, तो t वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आपके पास जो इसकी वैल्यू है अल्फा की और ओमेगा की, वो आपके सामने इस फॉर्मेट में हम सॉल्व करेंगे। पॉइंट इज क्लियर। सो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, pause the video and note down. Now student, we will talk here about the next point, which is our relation between angular velocity omega and linear velocity. So one by one I will discuss the all point in front of you, how we can correlate these two velocities. So see here, first when we talk about the relation between the angular velocity and linear velocity, तो इस रिलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है, उससे आपको याद रखना पड़ेगा। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंगल थीटा, आर्क हमारे पास क्या है, अगर हम सपोज इस केस में बात कर रहे हैं ए टू बी के लिए अगर डिस्कस कर रहे हैं, तो इस ए टू बी के लिए अगर हम एंगल को फॉर्मेट करेंगे फॉर ए टू बी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपके पास एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा। और इसके लिए अगर आप इस लीनियर डिस्टेंस को देखते हैं, तो ये अगर आपके पास S2 है, इधर से इधर तक सपोज T2 टाइम पे S2 डिस्टेंस है, और ये वाली डिस्टेंस T1 टाइम पे इधर से इधर तक आपके पास कितनी है, S1 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका डेल्टा S से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज आवर आर्क डेल्टा S, और इस केस में रेडियस आपको पता ही है, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड है, पोजीशन वेक्टर अलग अलग होंगे वो अलग बात है, बट सर्कुलर ट्रैक में रेडियस क्या होगी, सेम होगी। अगर इस फॉर्मूले को आगे लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट आर्क ए बी एंड रेडियस आर। सो इन दिस कंडीशन अगर आपको ये लिंक दिखाना है तो अब आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे बोथ साइड। अगर मैं इसको यहाँ पे डेल्टा टी टेंस टू 0 कर देता, तो आपके लिए ये जो मेरा डेल्टा थीटा, डेल्टा एस और डेल्टा आर की वैल्यू, इसको डी डी यहाँ पे डेरिवेटिव के टर्म्स में ले आता। कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, सो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, हमने बाहर ले लिया, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, अगर हम यहाँ पे टाइम को भी डेल्टा टी टेंस टू 0 ना कंसीडर करें तो ये आपके पास ओमेगा हो जाएगा। अगर आप करना चाह रहे हैं डेल्टा टी टेंस टू 0 तो उसको भी लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो देखिएगा अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 लिख रहा हूँ तो हम क्या करेंगे, लिमिट करेंगे डेल्टा टी टेंस टू 0 बोथ साइड डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी एंड 1 अपॉन आर, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसका कोई रोल प्ले नहीं होगा यहाँ पे, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट। तो डेल्टा इसकी वैल्यू जो पूरी होगी वो आपको पता है, डी थीटा बाय डी टी लिखेंगे आप इसे, और 1 अपॉन आर, और ये हो जाएगा आपके पास डी एस अपॉन डी टी। नाउ डी थीटा अपॉन डी टी इज कॉल्ड आर ओमेगा फॉर एन इंस्टेंट टाइम, and dx upon dt or ds upon dt is called a linear velocity for instant of time. So here I will write this is our omega 1 upon r into v, at final v is equals to r omega, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा v is equals to r omega. This is the relation between the linear velocity and the angular velocity is in front of you with the help of this relation. Point is clear. Now after that we talk here about the relation between, what relation, between the angular acceleration and linear acceleration. So before that you can see here one thing, the direction, if we think about that. So here as we know that
angular velocity omega. Here angular velocity omega is a vector quantity, so the direction of omega is along the direction of d theta, और you can say delta theta, और जहाँ पे angular displacement है, ठीक है, and its direction is given by right hand screw rule or right hand rule. You can identify the direction of omega by right hand rule, and also the alpha is a vector quantity whose direction is along the direction of d omega by dt. Points clear? तो ये आपके पास angular acceleration, linear acceleration, and next one is angular velocity, linear velocity. ये constant vector quantities हैं और इनकी direction आप ऐसे find out करेंगे, because here we are talking about the circular motion, so we focus only about these two. Point clear? So after that we talk here about the relation between the angular acceleration and linear acceleration. Now see, the next heading is relation between the angular acceleration and linear acceleration. As we know that the relation, अगर इसको हम continue करें तो as we know that the relation v is equals to r omega, we can continue this relation by this relation v is equals to r omega. Now this is our what? The relation between the linear velocity, and this is our linear velocity, and this is our angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन से लूँ तो 2 मिनट में आपके सामने आंसर आ जाएगा. डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि देखो ये वेलोसिटी भी आपका टाइम का फंक्शन है, ये वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों के दोनों टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ टाइम दोनों है. ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज़ बोल रहा हूँ, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों बोथ आर फंक्शन ऑफ टाइम. दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, जी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑल्सो. सो हेयर व्हेन वी डिफरेंशिएट बोथ साइड, then see what will come. Okay, so see here dv upon dt is equals to r d omega by dt, and you know that student dv upon dt is our linear acceleration which is noted by a, and d omega over dt is our angular acceleration which is noted by alpha. So here we can write a is equals to r alpha. This is the relation between the linear acceleration, this is our linear acceleration, and this is our angular acceleration. Point is clear, student? So these are some point of today's video. So revise and practice the all points at your home.